Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the romantic period and the romantic poetry. As you know, according to the course outline which I have shared with you, that this subject, the romantic poetry and the Victorian poetry, will be dealing with those poets who belong to the 19th century, in late 18th century and early 19th century poets, and especially the Victorian poets like Tennyson, Browning, which we will cover at the later part of this course. But we are starting with the romantic period, which some critics say that started in 1798 with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. But some critics also mentioned that the Romantic Age started previously, like in 1785. There is a conflict, there is a clash between the scholars and the school of thoughts about the commencement and the beginning of the Romantic Age, and this is because of the events, because of the social and political situation which existed in Britain, due to which it is considered that Romantic Age started in 1785, and specifically some critics mentioned that the philosophy or the ideas which are followed in romantic poetry were became very prominent in William Wordsworth's poetry and Samuel Taylor Coleridge's poetry, and from the publication of lyrical ballads, which was basically the name of a book which was combinedly published by Wordsworth and Coleridge. So the exact date, if you want to mention, is 1798, but the tendencies or the inspirations of the romantic poetry started roundabout in 1785. So both dates can be accepted and acknowledged, and it ended in 1832. This period is very brief, very short, but yet in spite of its shortage or the limited time span, this period is considered in the history of English literature the most fertile, the most rich, and the most literarily significant period. Why? Because we have the variety of poets, we have the variety of novelists in this period who have given so much work into English literature that this period has become very prominent throughout the English literature. So before starting directly the explanation of the poems or the discussion of the poems by the poets, it is a very good technique that we must understand the dimensions and the aspects, social aspects of that era, of that age, which basically provide us the insights, and these type of studies of the social, political, geographical, or even economic and religious backgrounds give us the background and give us the insights about the poets or the writers' mentality, thinking, thought process, etc., etc. So in order to understand the poetry of that age, in order to understand the literature of that age, and definitely the styles and the tendency of the poets and the writers, it is very important to try to understand the social, political, economic dimensions and the major events which shaped that age and which inspired that literature of that period. So we will be starting with the major event, discussion of the major social and political events, and then we will move on to the discussion of about the poets and their poetry. During this time period, Mary Shelley published Frankenstein. It was a Gothic novel, and in the upcoming slides, we will be discussing in detail that what is the meaning of Gothic and what was that kind of genre. But Mary Shelley was the significant novelist of that age, who has published her novel in the Gothic or in horror style, and this novel published in 1818. It was very lately published, but the inspiration of the age and the insights of the age can be observed, can be seen into that novel. Romantic period
को अंडरस्टैंड करने के लिए इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट दिस पीरियड स्टार्ट्स 1732 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड इन इंग्लैंड। इंग्लिश लैंग्वेज की कमेंसमेंट, बिगनिंग, इस्टेब्लिशमेंट या स्टार्ट जो है वो हुआ था एंग्लो सैक्सन एज में, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेचर है जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज के कम्बिनेशन से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस हुआ वो स्टार्ट हुआ एंग्लो सैक्सन से। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द 8th सेंचुरी आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि रोमांटिक एज में आकर के इंग्लिश लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लिटरेचर की रूट्स जो थी दे हैड बिकम वेरी स्ट्रेंथेंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेच्योर नाउ, the vocabulary and the terminologies and the dimension of social environment can be well expressed into English language now. So we are jumping ahead in English history and literature by crossing the Anglo-Saxon age, medieval ages, the Renaissance, the Restoration and the 18th century literature, and now we are discussing about the Romantic period. And typically, Romantic period is considered as a revolt against the literature of Restoration and the 18th century literature, which is just the predecessor of Romantic period. हम देखेंगे कि किस तरीके से रोमांटिक लिटरेचर या रोमांटिक एज के लिटरेचर ने बाइफर्केशन की या एक तरीके की रिबेल की अगेंस्ट दी नॉर्म्स, अगेंस्ट द वैल्यूज़ एंड अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड और द 18th century period. The actual period is said to begin with the French Revolution. A French Revolution was the major event of that age, which inspired not only France but also all the northern and central European countries. The period is said to end with the parliamentary reforms of 1832 in England that laid the political foundations for modern Britain. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन was basically started in 17 May, I guess कि May 1789 was the date when French revolution started in France against the monarchy, against the King Louis XVI. It was that time when the ancient regime of France was abolished in favor of constitutional monarchy. It replaced in 1792 ऑलमोस्ट 3 years की स्ट्रगल के बाद जो कि स्टार्ट की फ्रांस के पब्लिक ने, फ्रांस की आवाम ने अपने टायरेंट किंग के अगेंस्ट। और वो टायरेंट किस सेंस में था कि फ्रांस की पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अवाम पर आए रोज़ नए टैक्सेशन लॉज जो थे वो इम्पोज किए जाते थे, इम्प्लीमेंट किए जाते थे, और उन टैक्सेशन, ओवर टैक्सेशन की वजह से वहाँ के लोग पॉवर्टी का शिकार हो रहे थे। और एक मशहूर इंसिडेंट भी है, एक वाक़या भी है कि जब ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन लोग किंग के पैलेस के बाहर, किंग लुइस 16 के पैलेस के बाहर वो एहतजाज कर रहे थे, तो उस दौरान क्वीन ने अपने किसी मिनिस्टर से पूछा था वाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग। तो उसके मिनिस्टर ने जवाब दिया कि दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर द ब्रेड बिकॉज ब्रेड इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसने फिर बड़ा मज़े का जवाब दिया क्वीन ने, उसने कहा इफ़ ब्रेड इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट दे शुड ईट द केक्स। अब बेसिकली वो मजाक उड़ा रही थी उन लोगों का, उन अवाम का। जब ये खबर बाहर उन एहतजाजी लोगों तक पहुंची तो दे इवन अटैक द पैलेस, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि रॉयल फैमिली के डजन्स ऑफ द मेंबर्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया गया, किल कर दिया गया, और इवन किंग लुइस 16 को भी वहाँ की आवाम ने आफ्टर अ ट्रायल उसको भी एग्जीक्यूशन उसकी हो गई, उसका भी मर्डर कर दिया, यानी किलिंग कर दी गई, या उसको एक तरीके से फांसी चढ़ा दिया गया। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक रिज़ल्ट था पॉवर्टी का, एक रिज़ल्ट था किंग की टायरनी का और गवर्नमेंट की ओवर टैक्सेशन का, और एक
एग्ज़ाम्पल थी पब्लिक की अवेयरनेस की, कि जब पब्लिक अवेयर हो जाए अपने राइट्स के मुतालिक, या जब पब्लिक को उसके राइट्स ना मिलें, तो उस वक्त की जो एंगर है वो रूलर्स के खिलाफ क्या कुछ कर सकती है. सो इट वाज अ मेजर इवेंट, द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ public protest into the history of France, which not only resulted in the awareness, social political awareness of the people, but also the destruction of the monarchy, destruction of the kingship from the France. और फिर जो है 1793 में किंग लुइस को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, और इट आल्सो कल्मिनेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ नेपोलियन एज फर्स्ट कॉन्सल इन नवंबर 1799. ड्यूरिंग दीज 6 ईयर्स फ्रांस में जो है 93 से लेकर 99 तक पॉलिटिकल राइट्स रहे, एक काइंड ऑफ सिविल वॉर रही, और लोगों की जो है ये स्ट्रगल चलती रही. और फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट, एक मशहूर जनरल जिसका नाम आपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, वो फ्रांस का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कौंसल बन गया, या कह लीजिए, मैं उसको एक सिंपल टर्म में समझाने के लिए प्रेसिडेंट का नाम दे देता हूँ, लेट्स सी, कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक लीडर बन गया, जिसको फ्रांस की जो है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कौंसल बोला जाता था. सो इस तरीके से फ्रांस में जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, और ये डेमोक्रेसी उस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई 1799, जो कि हम रोमांटिक पीरियड की बिगिनिंग या रोमांटिक पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर जिसको हम करते हैं. सो रोमांटिक moment in English history was majorly inspired by the French Revolution. आप इसकी मज़ीद डिटेल्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन की डिटेल्स विकिपीडिया पर या इंटरनेट की किसी भी ब्लॉगिंग साइट पर इसको पढ़ सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स है या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस थी जिसकी वजह से जो थी वो फ्रेंच पब्लिक इग्नाइट हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, एक मोनार्की या किंगशिप से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ मूव उन्होंने किया, और हाउ दैट ऑल चेंजेस इन फ्रांस इंस्पायर्ड and attracted the English public and English masses as well. The actual period is said to begin with ये बात हमने कर ली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ रोमांटिक एज का, क्योंकि ये मेजर पॉलिटिकल इवेंट था जिसने पूरी की पूरी इंग्लिश सोसाइटी को और यूरोपियन कंट्रीज़ को हिलाकर रख दिया. और इंग्लैंड में इस रोमांटिक एज की जो एंडिंग हुई वो 1832 में हुई, जबकि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई, और स्टार्टिंग अवेयरनेस की हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और वो अवेयरनेस फ्रांस से होकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज से गुजरती हुई इंग्लैंड के लोगों में पहुंची, और इंग्लैंड के लोगों ने भी अपनी गवर्नमेंट यानी अपनी किंगशिप से, अपनी जो भी उनकी कोर्ट की उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनसे फिर टैक्सेशन में रियायतें कराईं, और फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बिल लेकर आए, और यहाँ से जो है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई कि जहाँ पर मोनार्की या किंगशिप के साथ साथ पब्लिक का भी ख्याल रखा गया कि पब्लिक को भी राइट्स हैं. और उसके लिए फिर एक और मेजर इवेंट हम स्टडी करेंगे आगे चलकर, जिसको इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, ये बड़े मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स थे. और यस, ट्राई टू कीप दिस थिंग इन माइंड के साइमल्टेनियसली विद द सेम टाइम कुछ अर्सा पहले ही अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी वो हैपन हो चुकी थी. अमेरिका में भी एक तरह की रिवॉल्ट आ चुकी थी, और वो क्या थी उसको हम आगे चल के थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, स्लाइड में है कि यू मे बी वांटिंग, यू मे बी थिंकिंग कि व्हाट डज द वर्ड रोमांटिक मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड. कि अभी तो हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशंस की, पॉलिटिकल अवेयरनेस की, तो ये रेवोल्यूशंस, अवेयरनेस, प्रोटेस्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इस किस्म के इवेंट्स में ये रोमांटिक टर्म की क्या सेंस बनती है. हमने क्योंकि रोमांटिक का वर्ड अटैच किया हुआ है विद दी पैशन ऑफ लव या विद द पैशन ऑफ इमेजिनेशन, तो रोमांटिक का इस एज से क्या रिलेशनशिप बनता है. The Romantic basically comes from the term romance, and romance was one of the most popular genres of medieval literature. आपने हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में पढ़ा था कि जब ड्रामे की बिगिनिंग हुई तो वो मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस, और फिर इंटरल्यूड से होती हुई फिर वो रोमांसिस तक आ गई. एक तरह की जो लव
स्टोरीज़ हुआ करती थी बिटवीन द लवर्स, बिटवीन द पीपल, वो रोमांसेस जो थे बेसिकली स्टार्टिंग बिगिनिंग उसकी मिडिवल एजेस में, मिडिवल लिटरेचर में, लेकिन उसी मिडिवल लिटरेचर ने इंस्पायर किया 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को, जिसकी वजह से जो है वो जो पैटर्न फॉलो किया गया है या जो इंस्पायरेशन फॉलो की गई, इंस्पायरेशन ऑफ इमेजिनेशन और द इंडिविजुअलिज्म, वो हम उसको रोमांटिक की टर्म में कंसीडर करते हैं। तो मिडीवल कनेक्शन इसका ये बनता था कि रोमांटिक राइटर्स self-consciously used the elements of romance in an attempt to go back beyond the refinements of new classical literature to old types of writing that they saw as more genuine and as more real. यहाँ पर जिक्र हुआ है न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है 18th सेंचुरी के रेस्टोरेशन पीरियड या रेस्टोरेशन लिटरेचर से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने स्टडी किया हो 18th सेंचुरी के लिटरेरी डायनामिक्स को, तो क्लासिकल लिटरेचर, ओरिजिनल क्लासिकल लिटरेचर कंसीडर किया जाता है जो कि बिलोंग करता है ग्रीक लिटरेचर से, यानी ग्रीस के लिटरेचर से। तो वो जो प्री क्रिश्चियन एज है जिसको हम जो है वो BC की टर्म में पुकारते हैं, तो वो ग्रीक लिटरेचर एक्चुअल क्लासिकल लिटरेचर है यूरोपियन लोगों के लिए, कि वो उसको क्लासिकल का नाम देते हैं। ओल्ड, एंशियंट, ग्रेट, ग्रैंडर किस्म के लिटरेचर को वो ग्रीक लिटरेचर को कंसीडर करते हैं। फिर न्यो का वर्ड, NEO का वर्ड जब भी किसी लफ्ज़ के साथ लगता है एक तरह से रिवाइवल के लिए यूज़ होता है। तो 18th सेंचुरी में उसी क्लासिकल लिटरेचर जिसको हम ग्रीक लिटरेचर भी कहते हैं, उस क्लासिकल लिटरेचर की रिवाइवल हुई, वो रिवाइव किया गया। और उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि जो भी लिटरेचर लिखा जाता था, नॉवेल, पोइट्री, पोएम्स या फिर ड्रामास, उसमें टेक्निकलिटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। जो स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है, स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रामा है, ये स्ट्रक्चर या प्लॉट ऑफ द नॉवेल है, वो लिटरेरी टेक्निक्स और लिटरेरी जो कैनन्स थे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। उसमें अगर स्टोरी कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो भी रही है तो पोइट्स लोग कर देते थे, बट वो पोइट्री के रूल्स से नहीं पीछे हटते थे। यानी वो एक रूल्स वाली और प्रिंसिपल्स वाली पोइट्री लिखते थे जहाँ पर राइम का ख्याल रखा जाता था, रिदम का ख्याल रखा जाता था, इंटरनल मीटर का ख्याल रखा जाता था, और बहुत सारी दीगर जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं वो उनको फुलफ़िल करते थे, चाहे वो उसमें उस सेंस में थीम जितना भी कंप्रोमाइज़ हो जाए। बट रोमांटिक लोगों के लिए, यानी रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करने वाले पोइट्स के लिए, राइटर्स के लिए, वो इमेजिनेशन और ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स और इमोशंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उन्होंने कैनन्स और लिटरेरी रूल्स को इतना फॉलो नहीं किया जितना कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को फॉलो किया, अपनी इमेजिनेशन और अपने इमोशंस को फॉलो किया। सो दैट इज़ वाई रोमांटिक पीरियड को इंटर रिलेट किया जाता है विद दी मिडीवल लिटरेचर, क्योंकि मिडीवल लिटरेचर भी ऐसे ही स्पॉन्टेनियस, इमोशनफुल और इमेजिनेटिव लिटरेचर कंसीडर होता है। सो ये कनेक्शन बेसिकली कनेक्ट किया जाता है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ एजेस, कि मिडीवल एजेस की जो लिटरेरी टेक्निक्स थी या लिटरेरी इंस्पायरेशंस थी उनको दोबारा से रिवाइव किया गया रोमांटिक पीरियड में बाय द रोमांटिक पोइट्स एंड बाय द रोमांटिक राइटर्स। So romance genre allowed writers to explore new, more psychological and mysterious aspects of human experience. उनके लिए जो सोशल इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम किया गया, ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, और बहुत सारे दूसरे मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स जो इंसान की पर्सनैलिटी से जुड़े होते हैं, इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन से जुड़े होते हैं, उन चीज़ों को सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री या सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर बनाया गया। रोमांटिक पीरियड में फिर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी उस एज की सोशल अपहीवल, सोशल डिस्टर्बेंसेस। The writers of the Romantic period lived in England during a time of social destruction कह लीजिए आप, ये social disturbances कह लीजिए। The Industrial Revolution in England changed the way people lived, where people lived and how business was done। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है कि 17th सेंचुरी में और फिर आगे चलकर 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश सोसाइटी थी वो शिफ्ट हुई फ्रॉम द एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल, यानी एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को कम कर कर
वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की गई। ख़ास तौर पे जो है वो जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, उसके साथ साथ फिर आयरन रिलेटेड या स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनने लगीं, व्हीकल्स बनने लगीं। ये सारी वो एज थी जिसको इंग्लिश सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चेंज और बहुत बड़ी शिफ्ट कंसीडर किया जाता है कि इंग्लिश जो कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, कंट्री था, वो एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल की तरफ शिफ्ट हुआ। अब जब भी इस तरह की शिफ्ट होती है तो सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो लोगों की लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशंस और उनकी अर्निंग कंडीशंस होती हैं। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में लोगों के पास बहुत पीसफुल लाइफ थी, उनके पास अपने रिसोर्सेज थे, वो अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो थी अपनी इनकम जनरेट करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो इंडस्ट्रियल जो डोमेन थी वो रिच पीपल या नोबेलिटी के हाथों में चली गई। जो नोबल क्लास थी, ऑनरशिप उनके पास थी, और जो पब्लिक थी वो बन गई लेबर क्लास, उनके लेबर्स बन गए। अब ओवर एक्सेसिव टैक्सेशन जैसा कि फ्रांस में थी बाय द किंग, वैसे ही इम्प्लीमेंट की गई बाय द इंग्लिश रूलर्स प्लस बाय द इंग्लिश नोबिलिटी, बाय द इंग्लिश रिच क्लास। और ना सिर्फ लो वेजेस वर गिवन टू द लेबर्स बट ऑल्सो द टैक्सेस वर इम्प्लीमेंटेड एंड इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक। सो ये जो सिस्टम था, लो वेजेस एंड हाई टैक्सेशन का सिस्टम, इसने ब्रिटिश सोसाइटी को भी वैसे ही अफेक्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी अफेक्ट हो रही थी बाय देयर नोबिलिटी और बाय देयर मोनार्की। तो इस तरीके से फिर अवेयरनेस स्टार्ट हुई लेट 18th सेंचुरी में कि ब्रिटेन के लोगों ने भी अपनी रिच नोबिलिटी, नोबल क्लास या रिच क्लास के अगेंस्ट और फिर डेफिनेटली किंग के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। टैक्सेशन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि टैक्सेशन रिमूव होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, वेजेस इंप्रूव होने चाहिए। फिर एक और मेजर जो चेंज थी वो था विलेज की पॉपुलेशन का सिटीज़ में शिफ्ट हो जाना ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एज। तो पॉपुलेशन शिफ्ट की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोगों के रिसोर्सेज कम हो गए, और इस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये हुआ कि एक तरह की सोशल अपहीवल और सोशल डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट हो गई। और फिर ब्रिटानिया में भी एक तरह की मूवमेंट चल पड़ी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर, जहाँ पर उन्होंने अपनी वेजेस को इम्प्रूव करने, वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए लेबर्स ने, और साथ साथ जो है वो अपने टैक्सेस को कम करने के लिए और अदर सोशल एंड इंडस्ट्रियल राइट्स के लिए उन्होंने फिर पार्लियामेंट में बिल पेश किए, जो कि फिर एंड में जाकर 1832 में जाकर पास हुए, और वहाँ से फिर लेबर राइट्स की जो है वो जनरेशन हुई। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड जो थी, दैट चेंज द वे पीपल लिव्ड, वेयर पीपल लिव्ड एंड हाउ बिजनेस वाज डन। इंग्लैंड चेंज फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू एन इंडस्ट्रियल नेशन विद ऑलमोस्ट एवरीवन लिविंग इन द सिटी। ये जो मैंने अभी दो तीन बातें की कि एक तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल पे शिफ्टिंग हो गई, फिर विलेज पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन की शिफ्टिंग हो गई टुवर्ड्स सिटीज़, और इसकी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, डिवाइड हो गई। और सॉरी